tension is around 27, 29. So what we call the sweet spot in the racket is really small. So if it doesn't hit the sweet spot, you completely lose control. So when you play at the amateur levels, you play with a tension of 24, 25, and that gives you a much bigger, sweeter spot. But then these guys have to balance power with accuracy. So the tighter the strings, the more power you get. And therefore, 13, what you were talking about. And at the other end, this young man needs to figure out a way to deal with the pressure. Every time he's put under pressure, a lot of unforced errors start creeping into his game. And that gives Li Hong this opportunity. Up by 1 point, 13-12. एक बार फिर वो नेट के पास में खेल खेला जा रहा था, लेकिन इशारा आउट का आया है. एक समय पे शुलाई को लगा कि वो अंक उनके पक्ष में जाएगा, और जैसे एक अंक उनको मिलता है वो बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करने लग जाते हैं. तो मैं बस इंतजार कर रहा हूं कि यदि ये मुकाबला उनके पक्ष में जाता तो वो कितना सेलिब्रेट करते. विपिन, That's right, some players are a lot more emotional than the others. Good disguise on that, and he needs to capitalize. Yes. Right, so you put in the right amount of disguise, create that opportunity, get a lift where you're in position to infuse power into the rally. And he needs to construct more points like these. Trailing by 1 though. 14-13, Li Hong up by 1. very well placed, powerful, some half-hearted sort of smash. Jumped in high beautifully. 13. और उसके बाद में उन्होंने वो पेस जो दिखाया, जिस रफ्तार के साथ में शटल को भांपा था, वो बैक एंड रिटर्न के तहत कोई जवाब नहीं, क्योंकि थोड़ी ज्यादा बाईं तरफ चली गई थी शटल. तो उसको पिक करना, उसको लिफ्ट करना कभी भी आसान रहता नहीं है. 15-13 अगले सर्विस. एक बार फिर कॉन्याक के पक्ष में. Another powerful smash, no reply from Shulai. Just some very similar sort of replay over there. He went back, kept on going on, found that jump pretty decently, and then managed to go on with a straightaway bodyline smash, getting up another point for the side. Cognac on 16. 13 is the score for Shulai. There's a small difference of 3 points, but you have seen that Shulai is pretty bad in getting those comebacks, isn't it? Well, he'll definitely be hoping for a different script. And the question is whether he can write that script for himself and whether he'll get any help from Li Hong. And sometimes you're just hoping that the shuttle will drift away. Service over. 14-16. Good judgment there, just realizing that the shuttle was drifting beyond the baseline. Play. And he has an opportunity. Ayush has been talking about how it's only a 3-point game. Well, it's become 2 now. Li Hong choosing the wrong lift for that smash. We can probably see that the shuttle was really close to the baseline. That's not necessarily the shuttle that you choose to smash. 15-16. A foot inside Ayush, it probably would have been a better shot selection. Powerful smash in this time, and in favor of Shulai. 16 all. These are the shots which generally impresses me, Vipin, when the player is running behind and it goes with that backhand return. It's impressive stuff. It looks beautiful on the screen out as well. That's right, and let me tell you, it's a really difficult shot to play, right? So beyond the shoulder, retrieving it, the kind of biomechanics that you need to generate the power right from your toe all the way to your wrist. Fantastic. That's what we were talking about. When the going gets tough, Li Hong somehow manages to shift into the next gear. Service over. Brilliant move, right from the baseline, 16. And then in time for the kill at the net. 17-16. पावर जनरेशन में हमेशा सफलता मिलती नजर आई है अभी तक कॉन्याक को इस मुकाबले में. ड्रॉप शॉट खेलने की कोशिश की गई, एक और बार फिर नेट के पास ड्रॉप किल करने का प्रयास, सफलता अभी तक रही नहीं है किसी भी खिलाड़ी के पास. बहुत खूबसूरत रैली अभी हम एंजॉय कर रहे हैं.
नेट के पास आए, गति को रोका, शटल की पेस को कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी और उस टैक्टिकल प्ले का कोई जवाब वहां आया नहीं कॉन्याक की तरफ से। किस खूबसूरती के साथ में ड्रॉप शॉट लगाया गया था, और ड्रॉप शॉट को जब आप पिक करना चाहते हैं तो इतना आसान रहता नहीं है। विपिन, कैसे आप देखते हैं उस टैक्टिकल प्ले को कि जैसे जैसे आपकी नेट से दूरी थी आपने पहले उसको कम किया, शटल की पेस को स्लो किया और उसके बाद वो अंक अर्जित किया। That's right, and what you can see is both these players are clearly nervous, right? So both of them had good smashing opportunities, but they choose to go for the lower risk shot of, coming with a mid-court kind of drop shot. And both of them are nervous, you can sense that. And both of them not going for the kill. So it's 17 all. Let's see if Mebankar can hold on to this set, and we might actually have a decider. I see, well done, going for a higher degree of difficulty, right? Cross-court placement with these guys. Well done. 18-17. और मुकाबला अब ऐसी परिस्थिति में आ चुका है कि किसी भी साइड वो शटल गिर सकती है, अंक किसी भी तरफ जा सकते हैं। बस फासला सिर्फ इतना है कि यदि ये जो सेट है वो शुलाई के पक्ष में जाता है तो तीसरा सेट भी हमें देखने को मिलेगा। कॉन्याक को यदि विक्ट्री मिलती है का मतलब ये कि तीसरे सेट की आवश्यकता है नहीं, लेकिन यहाँ शुलाई के पक्ष में ये सेट जाता हुआ नजर आ रहा है। धीरे धीरे वो मोमेंटम इनके पक्ष में अब 19 पे पहुंच जाएंगे। फासला जरूर 2 अंकों का है और 2 अंकों का फासला मेंटेन रहना चाहिए जब आप 21 के ऊपर होते हैं, वरना सेट आगे बढ़ते हुए आपको नजर आता है। विपिन, crucial point. Yeah, pressure. In some way, this is when you begin to see the difference between experienced players and younger players. Game point, Lihong, 17. just feeling the pressure there. You don't really need to go for a perfect placement when you're down by 2 points, 19-17. You should have just kept the shuttle in play and looked for a better opportunity. Okay. Well done. Good hustle by both these players. Opportunity to kill, and that's what we were talking about. Confidence not there. Otherwise, he should have finished that rally. And one side, it's a lack of confidence. The other side, it's a little excess of nerves. Easy placement. If you look at the last point here, the set point, he could have put this shuttle anywhere. 1 game and he sent it long. Li Hong there gets this opportunity, could have sent it anywhere, open court, and sets it beyond the baseline. What a wonderful replay. 21-17 दूसरा ये सेट था। अपने नाम किया है का मतलब साफ है कि एक और सेट हमें देखने को मिलेगा। चलिए, ये वो विनिंग मोमेंट था, वो निकल गया और उसके बाद में वो जो उनके चेहरे के ऊपर वो खुशी जिसका इंतजार कर रहे थे, हमें नहीं लेकिन अपने कोच को जरूर उन्होंने वो खुशी दिखाई है, दर्शाया है कि कितनी ज्यादा दरकार थी उन्हें इस सेट को अपने नाम करने की। और सेलिब्रेशन हर पॉइंट के बाद, हर जीत के बाद इस खिलाड़ी के पक्ष में रहा है। और अब ये जोश देखिए, ये जोश अब क्यों ना देखने को मिलेगा जनाब। अभी भी आप मैच के अंदर बरकरार हैं, तीसरा सेट तक इस मुकाबले को आप लेके आए हैं। अभी हमने 3 मैचेस देखे, तीसरा इनफैक्ट ये चल रहा है जिसमें पहली दफे ऐसा हुआ कि नौबत आई है वो तीसरे सेट में जाने की। उससे पहले तो वो एक तरफ मैचेस खेल के दिखाए थे। देवहूति लुहान ने शिकस्त दी थी ललवेन लुई को, और उससे पहले वाले गेम में विलिंदा को बाहर किया गया आसाम की तरफ से खेलने वाली ईशा रानी बरुआ की तरफ से। क्वार्टर फाइनल वो विमेन का है, उसके बाद सेमीफाइनल मैचेस खेले जाएंगे। Name is there? Name? Okay, no problem. Name is there. Some really good moments for Mebankar, and he had to change his game in the second set, making Li Hong work harder, moving him around the court and cutting down on his own unforced errors. And sometimes when you're playing as the home court player and you have the weight or the pressure
of playing on your home court, it takes a little bit of time for you to settle into your stride, and I think that's what's happened here for Mibankar Shulai. Love all. The second Play. set a lot more composed and taking this to a third. So this quarterfinal definitely a lot more interesting than the first two that we witnessed in the women's division. One love. Two love. First point going to the home star, Mibankar Shulai, capitalizing on the pressure that Lee Hong will be facing. Quick two in his kitty. And the script in the first two sets and the third set has been the same. The start has been really well managed by Mibankar. And then there is in the mid-segment a comeback from Lee Hong. And Lee Hong will be hoping he changes how he approaches this particular set. And already there's a difference. Taking that point, forcing Service that error over. from Mibankar. 1-2. He had an open court and should have finished that better. Unforced error, one would say. Good job. Reducing the all. height on the lifts that Lee Hong is using. Instead of going for high lifts, he's going for some medium height and pushing Mibankar to move a little faster. Let's see if this strategy works out well for him. 2 points each. Well done. Retrieving this, and this was an opportunity for Mibankar to kill this shuttle. Just a little lazy with his footwork. Should have taken a couple of feet back faster and 3, watched that 2. shuttle coming down in front of his left shoulder. पर फिर स्मैश करने की कोशिश जरूर की जा रही थी, Service over. 3 all. लेकिन नेट के ऊपर जाके शटल टकराई है. का मतलब ये कि शुलॉय के पक्ष में एक और अंक जाएगा. थोड़ा ज्यादा एग्रेशन दिखाते हुए यहाँ पे लियोंग 4-3. वो शिफ्ट किया था, उन्होंने पूरी कोर्ट का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी. विपिन, आपको नहीं लगता है कि वो जर्सी चेंज करने के बाद उनके अंदर जो लेवल ऑफ एनर्जी है वो और ज्यादा बढ़ गई है? लेकिन कंट्रोल रहनी चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Well, he's definitely trying to play a lot more faster, but I think his shot selection is a little off, right? So I think he's feeding Mibankar's 5, forehand a 3. little too much, even on those jump smashes. I think something around waist height for Mibankar on the backhand side is a better target area for Lee Hong. कुछ कड़े सवाल पूछे जरूर थे इस रैली के अंदर शोलाई ने. दाएं से बाएं, बाएं से दाएं वो नचाते रहे वहां पे लियोंग को, लेकिन उसके Service बाद over. जब वो स्मैश देने 4, की बारी आई, पूरा 5. पावर जनरेट करना चाहा और बाहर चली गई शटल. वो जो साइड लाइन है उसके बाहर जाने का मतलब ये होता है कि एक अंक आपके प्रतिद्वंदी को चला जाता है और कॉन्याक को 1 पॉइंट मिलेगा. 4-5 से अगले सर्विस बोलेंगे. This is the kind of smashes that Lee Hong should stay away from.
Leong. Bad judgment Leong. there. Come here. And he was hoping Don't that face it, okay? the shuttle will fly beyond the baseline, but I think he's right now against the drift. 5. And the shuttle kind of curves inwards right at the very end. So he'll have to watch out, and that's not the kind of error that you expect from, you know, a home player. He must have played in this arena a couple of times before. So you need to be careful Change. about the drift, right, when you're switching sides. But a similar story, Ayush. Mebankar takes a few points in the early parts, and then Lee Hong comes back and equals things. So 5 points now. Play. Nothing to separate these two boys. 1 set each, 5 points each. We are in the decider and enjoying bringing these pictures to you exclusively on the Doordarshan network. पिछले उस पॉइंट के ऊपर एक बार फिर निगाहें डालते हैं। इस बार जजमेंट के अंदर कोई गलती की नहीं, और महत्वपूर्ण विपिन मेरे नजरिए से यह रहता है कि आपने अंक जो है वो गंवाया तो किस तरीके से गंवाया है। क्या वो आपके खुद के एरर्स थे या फिर सामने वाले खिलाड़ी का एक अच्छा शॉट निकल के आया है? जब आप खुद के एरर करके वहां पॉइंट गंवाते हैं तो वो आपके दिल के ऊपर ज्यादा गहरी चोट देके जाते हैं। Ayush, if you remember, I was talking about how he should target waist height on the backhand side for Mebankar, and that's exactly what he does. And he has a lot less control on the backhand. A high backhand, he finds it a little difficult to defend. So that's his weak spot, and ideally Lee Hong should be targeting that more. Once again targeting the backhand. That's what he needs to do more, and that will create opportunities. Little nervous there. He was nervous. He was at the net. He should have finished this point right here. This was his time to finish, but he was nervous. एक अच्छा खूबसूरत सा प्लेसमेंट। अब कॉन्याक उस लीड पे आ चुके हैं और बरकरार कर रहे हैं। 8 के ऊपर वो पहुंच चुके हैं। 3 अंकों का ये फासला है। अगले सर्विस लेंगे 8-5 से। कोर्ट का पूरा अच्छा इस्तेमाल किया, ये सबसे अच्छी चीज कॉन्याक के इस प्ले के अंदर दिखी, और कई वैरायटी ऑफ शॉट्स भी उन्होंने दिखाए हैं। नेट किल करना चाह रहे थे, सफलता मिली, और वो कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। वहां शुलाई जैसे जैसे हर पॉइंट के बाद में एग्रेशन दिखा रहे थे, अब लियोंग की तरफ से भी वो एग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। वो पॉइंट के बाद में खुशी। क्या गेम है, क्या अद्भुत गेम है। पहला जो एनकाउंटर था सेट नंबर 1, उसके अंदर एक तरफा मैच देखने को मिला था, एक तरफा गेम देखने को मिला था कॉन्याक की तरफ से। उसके बाद शुलाई का एक अच्छा कमबैक, 21-17 से उस सेट को अपने नाम किया। ये मुकाबला एक बार फिर कॉन्याक की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी वो जो ड्रिफ्ट है, मुझे लगता है उसका फायदा हर उस खिलाड़ी को मिल रहा है जो इस एंड पे खड़ा है, जिसकी बैक आपको आपके स्क्रीन पे इस समय दिख रही है, क्योंकि शटल बहुत ज्यादा कैरी कर रही है। कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल उस एंड से जहां अभी शुलाई मौजूद। बैक एंड रिटर्न की उम्मीद कर रहे थे, बैक एंड रिटर्न की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन आउट का इशारा क्या वहां आया या नहीं, मांग जरूर की जा रही थी। बार फिर रिप्ले में कंफर्म करते हैं, ये बैक एंड रिटर्न हुआ, उसके बाद में पावरफुल स्मैश आया, और का मतलब ये था कि ये आउट का इशारा जो है वो बरकरार रहेगा। एक अंक लियोंग के पक्ष में। Fantastic to have these replays. That's the beauty of watching these live on the Doordarshan network, spotting that the shuttle was drifting wide. So going into the midway point of the third set, Lee Hong with a little bit of an advantage. Can he see this through? And Meghalaya's Mebankar there will need to write a different script here. और क्योंकि ये तीसरा और डिसाइडिंग सेट है, 11 पॉइंट्स के बाद वो साइड्स को स्विच किया जाता है, तो अब ये वो जो ब्रेक लिया गया है, वो ब्रीदर लिया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी लिए कि साइड्स के अंदर थोड़े से चेंजेस किए जाएंगे। मेघालय की तरफ से इस कंपटीशन को टफ करने की कोशिश कर रहे हैं वाशुलाई, लेकिन अभी इस तीसरे और आखिरी निर्णायक सेट में लीड के ऊपर लियोंग, कॉन्याक, 20 सेकंड। इनके जो साथी खिलाड़ी आपस में हमेशा चर्चा करते रहते हैं, और अच्छी चीज मुझे देखने वाली ये लगी ऑफिशियल्स के पूरे सपोर्ट के साथ, वो इन विजुअल्स का जो लाइव ब्रॉडकास्ट है उसको एंजॉय कर रहे हैं अपने सेट्स के ऊपर भी, और क्या कुछ गलतियां हुई, क्या कुछ खामियां रही थी, उसको रिवाइज करके आप वापस आते हैं अगले मैच के लिए। कल का जो दिन था मिक्स टीम चैंपियनशिप का,
विपिन, मैं आपको बताऊं कि वहां ऐसे बार कई ऐसे मुकाबले हमने देखे कि बैक टू बैक गेम्स खेलने पड़े थे प्लेयर्स को। आप इंडिविजुअल लेवल पे परफॉर्म करते हैं, फिर मैन डबल के अंदर आपको खेलना है, तो क्या गलतियां हुई है वो आप इंडिविजुअल से क्लियर करते हैं। गलती एक बार फिर हुई, अंक एक बार फिर मिलेगा और वो जाएगा मेघालय के पक्ष में। 6 पे अब आते हुए नजर आएंगे आपको शुलाई, तो कौन है 11 पे कंफर्टेबली प्लेस्ड है। Not happy with himself there. You can see the disappointment on his face. Admonishing himself. And it's particularly annoying when you know that it was an easy return. All you had to do is put it back and you mess it up. Very close call, very close call. Finally getting a judgment right. 13-6. Did he really get the call? 13-6, an opportunity for Lee Hong to extend that lead. Play. Not too happy with the call that he called from the official. Mebankar having some conversations there with the chair umpire, Ayush. लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये रहता है कि फाइनल डिसीजन किसके पक्ष में स्टे करता है। दाएं से बाएं वो नचाने की कोशिश कर रहे हैं शुलाई को। बॉडी लाइन प्रहास पहली बार नहीं, दूसरी बार में सफलता जरूर मिलेगी और 6 से बढ़कर 7 हो जाएगा अब शुलाई का स्कोर। बॉडी को पूरा स्ट्रेच किया पीछे की तरफ से, हाथ पूरे पेस के साथ में आया था और फिर वो जो एक शॉर्ट हार्टेड अटेम्प्ट एक बार बेस लाइन के पास एक अंक उनके पक्ष में लाता हुआ। 5 अंकों की ये लीड है। कैसे देखते हैं विपिन, क्या लगता है कि कौनिया किस लीड को बरकरार रख पाएंगे या उस ड्रिफ्ट का फायदा, क्योंकि वो 11 अंकों के बाद में साइड चेंज हो चुकी है, वो शुलाई को मिलेगा? Yeah, so you need to be a little smart about how you use the drift. So I think Shulai is doing that. Instead of playing for clears, he's 13. Actually, smashing a lot better in this particular set. Just needs to cut down on these unforced errors, both in terms of the judgments that he makes and also in terms of the shots that he plays. Play a little bit of conservative badminton, and he probably might force some errors from Lee Hong. No mistakes there. This youngster says if you lift, it's so short, right in the center of the court. Service Jump over. smash. 14. Body line, no opportunity there for Shulai. और उससे भी खूबसूरत बात जो लगी वो ये थी कि जैसे ही उन्होंने जंप प्लान किया, नागालैंड के सारे सपोर्टर्स, उनके सारे साथी खिलाड़ी जानते थे कि ये वो क्षण है जब वो किल कर सकते हैं, वो पावरफुल स्मैश लगा सकते हैं, बॉडी लाइन के ऊपर प्रहार, और एक अंक उनकी झोली में आता हुआ 14 से अगले सर्विस लेंगे। नेट के पास इतना अच्छा खेल दिखाया नहीं है कॉन्याक ने आज के इस दिन के मुकाबले में। 14. नेट का इस्तेमाल किया, वो अच्छा ड्रॉप शॉट लगाने की कोशिश जिसका कोई जवाब था नहीं, तो शुलाई को फायदा मिलेगा, एक अंक के रूप में वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी वो पीछा कर रहे हैं उस दौड़ में, अभी भी जो रफ्तार है वो कॉन्याक ने पकड़ के रखी है। मल्टीपल बैक एंड रिटर्न्स के बाद ये सफलता शुलाई को मिलेगी। उन्होंने गेम की पेस को थोड़ा सा स्लो किया था, उसके बाद ये पावरफुल मैच जिसमें नागालैंड के सपोर्टर्स ने एक बार फिर उनके लिए चीयर जरूर किया कॉन्याक की तरफ से। फिर ये जो बैक एंड रिटर्न आया, इसको बस देखते रहे और फिर पीछे मुड़ने की आवश्यकता थी नहीं। वो जानते थे कि कोर्ट के डायमेंशंस जो है वो भले कई बार हमारे जहन से बाहर हो जाएं, लेकिन उसकी एग्जैक्ट जो डायमेंशन वो हमें पता है, वो नॉलेज जो है वो मीटर्स की वो इनके जहन में रहती है। 4 अंकों का ये फासला, 10-14 की अगले सर्विस। Crucial point. This was a crucial point, and at such a crucial juncture, making an unforced error like this. 15, so this wasn't really a pressure 10. situation. If you look at it, it's an easy shot that he needs to play. Just a push on the backhand. Change. So disappointed with himself. Mebankar giving
Lee Hong a 5-point cushion as we move into the end stage of this third set. If Mebankar needs to make a comeback, he needs to make it now. There's no point in waiting or holding back. Quick. 15-10. The chair umpire being a little lenient with both these players because nowadays badminton, 15-10. the officials are very careful to not Play. allow players too long to recover. 15-10. Ball. Good hustle there on the court. There we can see that replay, capturing every moment for you. 16. And he should 10. have finished that when he had the opportunity. So Ayush, अगर हम कहें कि Mebankar's story or his journey in this match has been a story of unforced errors, गलत नहीं होगा ये. एकदम सटीक आपने कहा है. उनको सपोर्ट है. कई बार ये भी होता है कि जब आप लोकल क्राउड के सामने खेल रहे होते हैं तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर ले लेते हैं और वही करते हुए नजर आए. एक बार फिर वो जिस एरर की आपने बात की थी विपिन, वही एरर निकालते हुए बैक एंड रिटर्न करना चाह रहे थे. इतनी स्लो पेस के साथ शटल जा रही है कि भापना कभी भी टफ नहीं रहता आपके ओपोनेंट के लिए. और विशेषकर मुझे लगता है वो जो एरर्स होते हैं वो आपको मिलते हैं वो बेस लाइन पे, लेकिन साइड लाइन के ऊपर वो भापना इतना ज़्यादा टफ रहता है नहीं. वो जजमेंट एक बार फिर मिलेगा. आउट का इशारा आया है का मतलब ये कि एक और अंक कॉन्याक के पक्ष में. अब यहाँ से वापसी करना मुझे लगता है लगभग असंभव सा हो चुका है शुलाई के लिए. Few quick points there for Lee Hong, and just as we speak, not getting the roll from Service the tape. over. 11. What he will 18. be hoping for is Mebankar reciprocates that error. 7 points, a huge lead when we're talking about running scoring. So this match well and truly in Lee Hong's pocket. Mebankar insisting that his racket head was crossing the net tape. There you can see his gesture. But the official not agreeing with him. Service over. 19-11. लेकिन वो क्लियर करना होगा. अपने हाथ को पूरी तरीके से एक्सटेंड किया और दरकार कर रहे थे. वो गुहार लगा रहे थे एम्पायर से कि चलिए जनाब, वो जो मेरे रैकेट का हेड है वो उस तरफ पार उनका आया है और उसी के चलते ये अंक मैंने गंवाया है. लेकिन दरकार को स्वीकार किया नहीं गया. पावरफुल स्मैश आया, क्रॉस कोर्ट स्मैश आया जिसका कोई जवाब शुलाई के पास आया नहीं. समय लिया, सही टाइमिंग के साथ वो जंप लगाया और उसके बाद वो पेस, वो पावर सब कुछ जनरेट करते हुए क्रॉस कोर्ट स्मैश के तहत गेम पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं. एक अंक यदि यहां से कॉन्याक निकालते हैं का मतलब मुकाबला उनका. क्या खूबसूरत ये गेम रहा है बैडमिंटन का. ड्रॉप शॉट खेलने की कोशिश में एक अंक शुलाई को मिल जाएगा. नेट के ऊपर जाके शटल टकराई जरूर थी. जब नेट के पास खिलाया गया कॉन्याक को उनके लिए टफ होता गया और शायद वही कारण है कि सबसे ज्यादा अंक यदि मेबांकर ने निकाले तो वो उसी रीजन में नेट के आसपास, वो नेट प्ले जिसे आप कहते हैं बैडमिंटन की भाषा में, वो शॉर्ट सर्व लाइन को पार कर जाते हैं कॉन्याक. तो फिर वो जो गति है शटल की उसको भापना उनके लिए मुश्किल रहता है. लेकिन यह मुश्किलात का सबब बनेगा शुलाई के लिए. गेम पॉइंट में ये अंक अपने नाम करके कॉन्याक ने 21-12 से ये मुकाबला अपने नाम किया. तीसरे सेट तक मुकाबले को लेके गए. मैन सिंगल का ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला था. पहला सेट 21-13 से अपने नाम करने के बाद कॉन्याक को शिकस्त दी गई दूसरे सेट में शुलाई के द्वारा. 21-17 से वो सेट अपने नाम किया था और तीसरा 13-21, ये जो डिसाइडर सेट था वो 21-12 से अपने नाम किया था. वो बैक रिटर्न था. उसके बाद पावरफुल स्मैश था और ये स्लोमो में ईवीएस का खूबसूरत वर्क आप देखिए. बेसलाइन को पार की, चेहरे के ऊपर वो मन सी मुस्कान, क्योंकि जानते हैं सफर अभी लंबा है.
सेमीफाइनल, फाइनल पे रहती है हर उस खिलाड़ी की निगाह जो यहाँ से आगे बढ़ता है। तो सफर यहाँ समाप्त हो जाएगा मेबांकर शुलाई का। क्वार्टर फाइनल से उनको घर का रास्ता नापना होगा। ये ब्रॉडकास्ट आप तक लाने के लिए एक बहुत बड़ी टीम मेहनत करती है। मल्टीपल कैमरामैन, ऑडियो इंजीनियर्स, साउंड इंजीनियर्स, टेक्निकल टीम, फ्लो मैनेजर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ईवीएस, और तब ये खूबसूरत सा ब्रॉडकास्ट आप तक पहुंचता है। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर नागालैंड की ये टीम है जिनको 2 लगातार जीत मिली है। पिछले मुकाबले के अंदर देवहूति लोहान जो ब्लैक और ब्लू जर्सी में है, उन्होंने वो मुकाबला जीता था। ऑफिशियल डिग्निटरीज जो हैं वो भी मुकाबले को एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। ये एक अच्छी चीज है, सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं बल्कि उस गेम के भविष्य के लिए भी। नॉर्थ ईस्ट से बहुत ज़्यादा बैडमिंटन का क्रेज़ हमें अब मिलने लगा है पिछले 2-3 साल में। आप देखिए, और जिस तरह की परफॉर्मेंस विशेषकर नागालैंड जैसे स्टेट से आई है, सराहना करनी होगी। वो जो क्लास है, वो जो परफॉर्मेंस है, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। विद टाइम चीज़ें इंप्रूव होती भी नज़र आ रही है। खिलाड़ी अपने कोचेस से चर्चा करते हैं। मल्टी कोर्ट सेटअप यहाँ मौजूद, जहाँ विमेन डबल शुरू होगा। चलिए, आपने एंजॉय किया उस अद्भुत से मुकाबले को, और जब मुकाबला समाप्त होता है का मतलब ये कि हमेशा हमें विजेता मिलते हैं। कॉन्याक इस मैच के विनर हमें मिल चुके हैं। तो समय हो चुका है आपको लिए चलने का विपिन के साथ। ओवर टू विपिन। Thank you, Ayush. And we are courtside now after watching a very close contest, the quarterfinals in the men's singles division. We had a hometown superhero playing, Debankar Shulai, but he had to face defeat against none other than Lee Hong. Fantastic game, congratulations. Did you enjoy this game? 3-setter, थोड़ी मुश्किल तो रही थी आपको? Yeah. Thank you so much for having me. Yeah. I mean, I'm happy to get back on court. Beginning of this year, I mean, I was having an injury, so I was having I was taking a bed rest for nearly 3 months like that, and after that also some other injury like shoulder injury like that I had, and then I'm happy that I'm able to get back on court, and then I'm enjoying it. So, इनको देखने से तो नहीं लगता कि इंजरी के साथ खेल रहे थे. Definitely Debankar and you were definitely looking the more fitter guy. You were reaching the shuttle earlier. So you were recovering from a little bit of a back problem is what I was told. Is that correct? Yeah. Since from the pre-quarter match, I was having a little bit stiffness on my legs and then on my lower back at the same time, yeah. All 3 games, we saw Debankar take a quick start, right? The first set, you really didn't settle and Debankar ने 5 पॉइंट लगातार लिए. आप क्या सोच रहे थे उस वक्त? Starting में थोड़ा मेरा कुछ start नहीं हुआ. I mean, I was unable to control the flight because out there where I practice, the वहाँ का थोड़ा environment is a bit hot, and then here it's cold. That's why the shuttle is a bit faster. So I was unable to adjust the court in the first, few rallies. 5 to 10 points like that. But then eventually I got used to it, and then I'm happy that I'm able to take out a game like that. Fantastic. So the drift is a bit strong because we have a little bit of an open air here as well, right? So there is a drift there. So which side is it? Is it moving right to left or left to right? Both side. Yeah. The shuttle and on top of that, the shuttle is also leaning. So yeah, it was a bit fast comparing to your next other than that like that. Fantastic. So what do you think? What do you think about the organization of these games so far? Have you been enjoying yourself here in Meghalaya? It's been nice. It's been good. You're enjoying yourself. The team spirit within your Naga team, is it feeling good? Yeah. I'm really enjoying it. Even my teammates also, we are really enjoying. Playing not only our sport but in other discipline as well. Yeah. What do you think about the broadcast that we guys are doing? So the pictures, are your friends watching some of your videos? We are on YouTube as well. You can catch us on the Prasad Bharati YouTube links. You can catch us on DD Sports as well. Are they enjoying watching you play? Yeah, they're really enjoying. Some of my cousins, my friends, and even my families, they call me up and saying that we are able to watch you on TV like that. So yeah, I'm really happy that
Fantastic. So that was the start of the quarterfinals. Lee Hong, our first three-setter that we witnessed. Congratulations. We hope that you make it to the semis, and we hope to see you in the finals as well. A strong performance from Nagaland. The future of Indian badminton and northeastern sports in Nagaland in good hands. With this, we wrap up things from here on the court, sending you back to the commentators box to my dear friend Ayush. धन्यवाद विपिन। 3 मैचेस जो अभी खेले गए उनमें से 2 मुकाबले नागालैंड की टीम ने अपने नाम किए। जो पहला विमेन सिंगल था वहाँ देबहूती लाहौन ने वो मैच अपने नाम किया था। उसके बाद लियोहोंग कॉन्याक ने शिकस्त दी थी मेबांकर शुलाई को। तो आज के दिन का ये चौथा मुकाबला जो कि मेन सिंगल कैटेगरी के तहत खेला जाएगा। तो आसाम, मेघालय, सिक्किम और उसके साथ मणिपुर, ये वो 4 स्टेट्स जो भिड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ कोर्ट नंबर 1 के सबसे महत्वपूर्ण मुकाबले के ऊपर। ये प्लेयर्स पूरी तरीके से तैयार हैं। अंपायर, उनके साथ में सर्विस जज एंटर करते हुए जरूर नजर आते हैं। तो आज के दिन का ये चौथा मुकाबला, ये बड़ा क्वार्टर फाइनल मेन सिंगल कैटेगरी का खेला जा रहा है, जहां आसाम के सामने मेघालय की टीम है। क्वार्टर फाइनल का ये मेन सिंगल मुकाबला है और आसाम की तरफ से तन्मय विकास बोरा, उनके सामने मेघालय की तरफ से खेलते हुए ऋतुराज नाग नजर आएंगे। मुकाबले के एम्पायर अब वो सिक्का उछालेंगे। देखना ये कि सिक्का पक्ष में किसके जाता है। तन्मय विकास, उनके पक्ष में ये सिक्का गया और शायद साइड चुन ली गई है। तो अब तन्मय, ऋतुराज नाग, 3 सेट की उम्मीद की जा रही है। आपके स्क्रीन के ऊपर इस समय ऋतुराज नजर आ रहे हैं। ऋतुराज नाग जो कि मेघालय को रिप्रेजेंट करेंगे। पिछले मुकाबले के अंदर मेघालय के मेबांकर शुलाई को शिकस्त मिली है। और वहीं दूसरी तरफ वार्म अप करते हुए तन्मय विकास बोरा आसाम को रिप्रेजेंट करेंगे। स्ट्रॉन्ग साइड है। कल हमने देखा कि आसाम ने अरुणाचल प्रदेश को मिक्स्ड टीम इवेंट के अंदर शिकस्त दी थी, जिसमें एक महत्वपूर्ण योगदान तन्मय विकास का भी रहा था। हालांकि पहला मुकाबला उन्होंने गंवाया था कल के दिन का, वो मेन सिंगल कैटेगरी के बीच में। लेकिन आज दिन अलग, आपके सामने आपका ओपोनेंट अलग। एक नई राह की चाह रहेगी इस खिलाड़ी के मन में। इनफैक्ट दोनों ही खिलाड़ी यही चाहेंगे कि अच्छी शुरुआत उन्हें मिले, मैचेस हम जीतें। मुकाबले की अंपायर वो लाइनअप्स को, सेटअप को, सब चीज चेक करती हुई। सर्विस जज भी यहां रहते हैं। सर्विस जज पूरी तरीके से तैयार है। वो भी देखते हैं कि वो सर्विस किस तरह से की जा रही है, क्या वो पूरी क्लीन है या फिर नहीं है। शॉर्ट सर्विस लाइन को पार किया है, नहीं किया है, कहां जाके किस एंगल के साथ आप वो सर्विस लेते हैं, बैक एंड रिटर्न आप कह सकते हैं, वो भी देखने को मिलती है। ड्रॉप शॉट्स भी हमें देखने को मिले थे पिछले मुकाबले में। सर्विस जज आपके स्क्रीन के ऊपर। कई तगड़े स्मैशेस जो लग सकते थे पिछले एनकाउंटर में, विशेषकर उस तीसरे सेट में वो हमें देखने को मिले नहीं थे। प्रेशर सिचुएशन में नेट के पास खेल ज्यादा दिखाया गया दोनों ही खिलाड़ियों के द्वारा। तो यहां आज के दिन का ये चौथा मुकाबला तन्मय विकास बोरा के सामने ऋतुराज नाग। क्या ये मुकाबला मेघालय की टीम अपने नाम कर पाएगी या आसाम हर बार की तरह अपने नाम की तरह वो बड़े नाम, बड़े मैचेस जीतना वो जानते हैं। वो समय बहुत ज्यादा दूर नहीं जब ये मुकाबला शुरू होगा, पहला सेट शुरू होगा। आठ स्टेट से प्लेयर्स आएंगे जो ये सेकंड नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक में पार्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं। मेघालय, शिलोंग एक खूबसूरत सा शहर। बाहर तापमान जो है वो थोड़ा कम जरूर रहता है, लेकिन मोमेंट ऑफ द हीट में बहते हुए हमने कल ऋतुराज नाग को देखा है। Ladies and gentlemen, on my right, Tonmoy Bikash Borua, Assam, and on my left, Rituraj अनाउंसमेंट कर रहे हैं Meghalaya. ऋतुराज मेघालय के रहने वाले जो ब्लू कलर की जर्सी में है, उनकी बैक फेस कर रही है आपके स्क्रीन को। तो वहीं सामने तन्मय विकास बरुआ
जो रिप्रेजेंट करते नजर आएंगे आसाम को, ब्लूइश वाइट टी शर्ट में, ब्लूइश वाइट जर्सी में मौजूद। बस सर्विस का इंतजार है। सर्व करने के लिए ऋतुराज नाग तैयार। पहले सर्विस, बैक एंड सर्व किया और पहला पॉइंट बहुत जल्द। हम उम्मीद करते हैं कि वो लंबी लंबी रैली हमें देखने को मिले, लेकिन ऋतुराज नाग के पक्ष में वो नतीजा है वो जाएगा नहीं। 93 विकास की शुरुआत। मेरे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं मेरे साथी कमेंटेटर विपिन। स्वागत विपिन, स्वागत विपिन। And so far